Yeah, hope so I'm audible. Yes, sir. Okay, that's good. Yes, हरीश रेस्ट कैंडिडेट कहाँ पे है? Okay, so we will begin for the session. मेरी आवाज ठीक से आ रही है? Yes, मेरी आवाज ठीक से आ रही है? I'm audible, guys. Yeah, you are audible. Yes, sir. Okay, that's okay, that's good. So चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं. Unfortunately, like there was a power issue, तो उस वजह से we have not meet in office itself. Okay, तो आज हम थोड़ा वर्चुअल मीटिंग पे ही कंसंट्रेट करेंगे. And as we have some of the participants, okay, which are not familiar with the Marathi language, so we will go for the Hindi language now onwards. Okay, तो हम हिंदी का यूज करेंगे, हिंदी और इंग्लिश का, to deliver the content of the web for our upcoming courses. I hope so the candidates are not having any issue. Yes, हिंदी में सबको चलेगा? पटेल? Yes, sir. Okay, very good. Great. So let's begin for the session. And the very first thing, just I will share my screen. Okay. So please inform me once the screen is visible to you guys. Yes, screen visible है? Yes, screen is visible. Yes, sir. Okay, that's great. So let's begin for the session. And like the last topic we have left in the lecture, that was the arrays, right? हमने array का वो last topic लिया था from the JavaScript. I hope so everyone is clear with that. Yes, sir. Okay, so likewise in the last lecture we have discussed regarding the functions. Okay, functions क्या होते हैं, किस तरीके से हम यूज कर सकते हैं. और आज का जो लेक्चर है उसमें हम ये देखेंगे दैट हाउ वी कैन डेवलप और सॉरी हाउ वी कैन इम्प्लीमेंट द अरेज लॉजिक. ओके, तो हमने अरे का कोड देखा था एंड वी हैव आल्सो इम्प्लीमेंटेड द फंक्शनलिटीज ऑफ द अरे. ओके, सो जस्ट गिव मी अ मोमेंट. ओके, सो जस्ट आई विल क्रिएट अ फोल्डर ओवर हियर. ओके, मैं एक टेम्परेरी फोल्डर क्रिएट करूंगा विद द नेम ऑफ जावास्क्रिप्ट. Okay, React batch. And let's open this one with VS Code. So just I will say open with terminal and just I will say code dash forward space dot. Yeah, and this will simply open my application in the VS Code. Okay. So यहाँ पे मैं एक file create करूँगा very quickly, that is index.html. Also, I will create one folder that is JavaScript folder, and I will add a file called the main.js. And very quickly, just I will create the HTML page.
just I will say day one, arrays. And in arrays, we have just started with the very first implementation. जिसपे मैंने simply क्या किया था? Just I have taken the names of the student. Okay, so what I will do, just I will add a script with the help of script tag, and just I will go with the JavaScript folder and JS. So आज जो पहले, like those who are candidates are having this as a first lecture, there might be possibility कि आपको lecture थोड़ा समझ में ना आए, but don't worry, just stuck with this lecture, okay? Because like I will go with the recap, okay, in the upcoming days. तो ये सारे टॉपिक आपके क्लियर हो जाएंगे if it is not clear in that case. Okay, don't worry. Okay, yeah. Yeah. So now the next step will be to just open this one with live server. तो यहाँ पे हम live server पे open कर देंगे. And yeah, just let's maximize it. So now we have our code. हमारे पास हमारा code है, and we have the output with this. Okay. Also, I will open the inspect section in the console, and this is what I just want. To check whether our JavaScript is linked or not, हम यहाँ पे console.log और hi लिखेंगे, and you will able to see that it just works perfect. Okay. Now, हमने JavaScript में देखा था array. तो कौन बता सकता है what is an array? Yes, Manish. Array contains same or different data type. Very good. Yes. So array is a container, okay, which actually can store the same data or different data we of types, right? So अगर मुझे array को define करना है तो हम कैसे define कर रहे थे? Array with the help of square bracket, right? और फिर हमने इसमें कुछ names डाले थे, जैसे I will just say A, okay, like I can just, or just I will write like Omkar. Yes. So just I will say Omkar. Then like Manish. Okay, then simply just I will write one more name like Yogesh. Then then we will just write Harish. Okay, let's save it. और सिंपली हमने ये भी देखा था कि array का जो इंडेक्स होता है वो 0 से स्टार्ट होता है. So it starts from 0. Okay, and it is auto generated. Okay, ये 0 से स्टार्ट होता है और ऑटो जनरेट होता है. अगर array empty हो तो बाय डिफॉल्ट array का इंडेक्स क्या होता है? If its array is empty, -1. very good, -1 होता है, right? So this was what we have just seen in the last lecture. Okay. उसके बाद हमने ये भी देखा क्या, that in array we have some functions. Okay, जैसे कि हमारे पास हम array को read कर सकते हैं, हम array को array में डेटा ऐड कर सकते हैं, उसमें डेटा डिलीट कर सकते हैं, डेटा अपडेट कर सकते हैं, array को हम array में डेटा हम सर्च कर सकते हैं. Also we have learned that कि array जो होता है उसमें हम सिंपली क्या कर सकते हैं, but we can do more. We can simply sort an array. We can also reduce the array. And one more thing we can do, that is we can recreate the array. Okay. Reverse the array. Yeah, we can reverse the array. Very good. So we have the reverse method, right, to reverse the array. Also हम array को cut भी कर सकते हैं. Okay, so we can cut that array, and also we can simply convert an array to string. Okay, आज का हमारा लेक्चर 1 ही घंटे का रहेगा till 7 PM. Okay, कल से हमारा सेशन रेगुलर रहेगा. इवन तो अगर पावर नहीं, जस्ट आई विल मेक श्योर दैट कि मेरा लैपटॉप मेरे साथ रहेगा. अनफॉर्चुनेटली आज नहीं था, सो दैट्स व्हाई आई वाज नॉट एबल टू जस्ट अटेंड दैट वन. ओके, बट नेक्स्ट लेक्चर जो रहेगा हमारा 5 बजे रहेगा शार्प. ओके, और यही लिंक रहेगी अगर ऑनलाइन रहा तो, बट प्रोबेबली इट विल नॉट बी ऑनलाइन फॉर अदर कैंडिडेट. जो ऑनलाइन है वो यही लिंक यूज करेंगे. ओके, फॉर एनी वन ऑफ द लेक्चर.
डोंट वरी। एंड ऑब्वियसली द रिकॉर्डिंग विल बी अपलोडेड, ओके। और इसकी जो रिकॉर्डिंग लिंक है मैं वो शेयर कर दूंगा। करंटली डायरेक्टली मैं जूम की लिंक शेयर कर दूंगा, यू कैन डाउनलोड दिस फाइल, okay, and once I get all the files from Harish, so what I will do after that, sorry, Harshal, not Harish, Harshal से जैसे ही मुझे फाइल मिलेगी, just I will upload it on YouTube, okay, so it will be available with you guys. So the next step will be to read the array, okay. हाँ, तो हमने array के लिए कुछ मेथड्स लिखी थी, तो रीड करने के लिए कौन सी मेथड होती है? कौन सी मेथड देखी थी रीड For करने? each, for each. और each, वेरी गुड, यस। अगर मुझे डेटा ऐड करना है तो हमने कौन सी मेथड लिस्ट आउट? Push, unshift, slice. यस हर्षल, करेक्ट। पुश, सॉरी पॉप, सॉरी पुश, then we have also seen unshift, and one more we have seen, that is a splice. अगर डिलीट करना है तो हमने मेथड देखी थी पॉप, then shift, and then we have just seen the methods pop, shift, उसके बाद splice। Splice. उसके बाद अपडेट करने के लिए भी हमने कुछ मेथड्स देखी थी, दैट वाज कॉल्ड एज अ स्प्लाइस। सर्च करने के लिए हमने फाइंड और फिल्टर मेथड का यूज किया, या लाइक फिल्टर मेथड है, ओके, वी आर गोइंग टू सी दिस ऑल मेथड्स। उसके बाद सॉर्ट करने के लिए हमारे पास सॉर्ट नाम की मेथड है। रिक्रिएट करने के लिए हमारे पास मैप नाम की मेथड है। रिवर्स करने के लिए हमारे पास रिवर्स करके मेथड होती है। कट करने के लिए हमारे पास स्लाइस नाम की मेथड होती है। और अगर मुझे एरे को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है, देन वी हैव मेथड कॉल्ड एज जॉइन। तो मिनिमम आपको इतनी मेथड्स आनी चाहिए, मिनिमम आपको इतनी सारी मेथड आनी चाहिए। दिस इज समथिंग विच इज द मिनिमम क्राइटेरिया, ओके। तो चलिए वन बाय वन जस्ट ये मेथड देख लेते हैं, एंड लेट्स कंक्लूड ईच एंड एवरी मेथड ओवर हियर, ओके। तो मान लेते कि मुझे ये जो स्पेसिफिक एरे है, जैसे ओमकार, ओके, मैं और एक नाम यहाँ पे डालूंगा, जैसे ओम, ओके, एंड लाइक आई विल जस्ट ऐड वन मोर नेम लाइक मानसी, okay, and just I will add my own name also, like Deepak. I will add one more name like Neha, and let's save it. Let's save it. So you will see one thing that कि हमारा जो array है उसमें बहुत सारे names है। अभी मान लेते हैं कि मुझे ये array का हर डेटा क्या करना है, what I need, I just need that कि ये जो डेटा है ये मुझे रीड करना है। So for that the first method we are going to see is for each. So just I will say that whatever the array I'm having, that array dot, then we can use a method called as a for each. Okay, और इस for each में हम पास करते हैं कॉलबैक फंक्शन। तो मैंने कॉलबैक फंक्शन की डेफिनेशन क्या बताई थी? ये ओमकार, यस, क्या डेफिनेशन थी? Callback function is a function which is returning another function call. वेरी गुड। कॉलबैक फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जो दूसरे फंक्शन के कॉल में लिखा जाता है। सो हियर व्हाट आई विल डू, जस्ट आई विल से अ फंक्शन, एक फंक्शन की डेफिनेशन जो मैं दूसरे फंक्शन की कॉल में लिख रहा हूँ, ओके। एंड सिंपली व्हाट आई कैन डू, हियर जस्ट आई कैन से कि यहाँ पे मुझे वैल्यू और उसका इंडेक्स मिलेगा। एंड नाउ इफ आई जस्ट यूज console.log टू प्रिंट दैट, यू विल सी दैट कि ये रन हो जाएगा, and you will see everything is perfectly working, okay. It's actually working very perfect.
सो दिस इज हाउ यू कैन जस्ट राइट अ लॉजिक। ये कॉल बैक फंक्शन को हमने बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया था, सो आई विल नॉट डिस्कस इट ओवर हियर राइट नाउ, ओके। बट इफ यू हैव अ क्वेश्चन यू कैन जस्ट आस्क मी ऑन दिस। तो यहाँ तक किसी के पास कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी है? यस, एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरी? विभाग आप एक बार कॉल बैक वापस रिपीट कर दो। हाँ सॉरी, एक बार आप कॉल बैक वापस रिपीट कर देना। हाँ ओके। बेसिकली कॉल बैक फंक्शन कैसे होता है, आप जो भी फंक्शन लिख रहे हो, ओके, तो नॉर्मली क्या होता है कि एक फंक्शन ही मान लेते हैं हमारे पास, लाइक फंक्शन ए है, और उसके बाद हमारे पास और एक फंक्शन है जैसे फंक्शन बी है। अभी जैसे फंक्शन बी में मैंने दो पैरामीटर पास किए, लाइक से ए एंड बी। तो जैसे हम फंक्शन को कॉल करेंगे लाइक बी, तो मेरे पास दो पैरामीटर है, तो मैं यहाँ पे जैसे 10 20 भी लिख सकते हैं। लेकिन ऐसा ना लिखते हुए हम क्या कर सकते हैं, जैसे विल रिमूव दिस फंक्शन, ऐसा ना करते हुए जैसे मैं मतलब मान लेते मैं ये पैरामीटर लिख रहा हूँ लाइक से 10 20, तो ये ए और बी में जाएगा। सो आई कैन जस्ट यूज लाइक console.log to print them like a comma b. But if I save this, and as soon as we will go to the page, you will see that we have this one. Okay, मैं यहाँ पे just console.clear भी लिख लेता हूँ, so that वो नीचे वाला कोड रन नहीं होगा, it will be get clear. Actually this will, I will just need to commit it. So you can see now it just prints a and b. इसी तरीके से मान लेते मेरे पास एक तीसरा पैरामीटर है जो c है, और मैं उसे यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ, और उसमें मैंने क्या कर दिया, मैंने एक फंक्शन लिखा जिसको नाम नहीं है, एंड जस्ट रिटर्न कर्ली ब्रैकेट। तो देखिए मैंने क्या किया है, जरा ध्यान से देखिए, एक फंक्शन लिखा जिसको मैंने राउंड ब्रैकेट दिया, एंड आई हैव गिवन द कर्ली ब्रैकेट। तो अभी अगर मैंने सेव किया, आप देख सकते हैं कि आउटपुट में ये मुझे फंक्शन देगा। ओके, अभी ये जो सी है मैं इसे रन कर सकता हूँ, जैसे मैं सी कुछ ऐसे रन कर सकता हूँ, ये फंक्शन है, तो इस फंक्शन के अंदर मैं जो भी लिखूंगा वो रन हो जाएगा। जैसे मैंने लिखा console.log, तो ये रन हो जाएगा, जैसे हेलो, देखिए हेलो रन हो गया। क्यों? बिकॉज ये डेफिनेशन एज अ पैरामीटर मैंने पास की, और उसको मैंने यहाँ पे रन किया। मान लेते मैंने ए और बी को यहाँ पे पास कर दिया, तो मुझे ये जो फंक्शन का कॉल है इसकी डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिखी, तो मुझे लाइक नंबर 1 लाइक n1 एंड n2 यहाँ पे मुझे मिलेंगे। तो मैंने अगर कुछ ऐसा अगर लिखा लाइक n1 एंड n2, and if I save it, you will see that it actually runs. हमें वो 10 20 बता रहा है। मान लेते यहाँ पे अगर मैंने 100 भी कर दिया तो वही होगा, क्योंकि ये दोनों पैरामीटर ए बी में जा रहे हैं, और जो मेरा सी पैरामीटर है वो एक फंक्शन है, तो मैंने उस फंक्शन की डेफिनेशन यहाँ पे पास कर दिया और उसे मैं रन कर रहा हूँ। अच्छा, मतलब ये हो गया कि एक फंक्शन जो है वो दूसरे फंक्शन के आर्गुमेंट में पास होता है तो उसको कॉल बैक बोलते हैं। यस, अगर एक फंक्शन दूसरे फंक्शन के आर्गुमेंट में अगर हम पास करें उसे हम कॉल बैक कहेंगे। वेरी गुड, ओके, यस, होप सो एवरीवन इज क्लियर। और कोई क्वेश्चन है किसी के पास? Yes, shall we move next? Shall we move towards the next point? Yes, sir. Yes, sir. Okay, that's good. तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? What we can do, we can simply write a callback function. We can simply use that for each. Okay? और इसमें ये फिक्स होता है, पहली जो पैरामीटर है उसमें वैल्यू रहेगी, दूसरा पैरामीटर इंडेक्स। मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ, स्टूडेंट नेम। Then I can say student name. तो आप वेरिएबल को कुछ भी नाम दे सकते हैं, ऐसा कंपल्शन नहीं कि ये नाम होना चाहिए। You can give any name to it. Okay, it's not compulsory. Now, let's say कि मुझे डेटा ऐड करना है, जैसे कि यहाँ पे हमारे पास आप देख सकते हैं बहुत सारे मेंबर है।
ओके, तो जैसे यहाँ पे मैं जस्ट ऑन console.log just I will add a commit over here. Okay, just I will add this one. Yeah, and यहाँ पे मैं डेटा ऐड करने का भी लॉजिक हम देखेंगे. ओके, वी विल जस्ट सी द लॉजिक कि एग्जैक्टली लॉजिक क्या है हमारे पास. ओके, सो लेट्स डिस्कस दैट. तो डेटा ऐड करने के लिए हमारे पास अलग अलग वेज है. सो इफ आई जस्ट से अरे डॉट पुश एज अ मेथड, तो ये एंड से डेटा ऐड करेगी. ओके, और इसके अंदर हम अभी वैल्यू डालेंगे. सो जस्ट आई विल यूज लाइक सम अदर नेम लाइक सूरज, एंड इफ आई सेव इट एंड ओके, सूरज. सो अगर मैंने इसे सेव किया एंड इफ आई जस्ट ट्राई टू यूज और इफ आई जस्ट ट्राई टू प्रिंट दिस वन, with the help of console.log, if I just say array, you will see वो सूरज जो है वो एंड से ऐड हो जाए. अभी मान लेते हैं कि ये डेटा मुझे सामने से ऐड करना है. सो इंस्टेड ऑफ पुश आई कैन जस्ट यूज अनशिफ्ट. और अब देखो कि वो डेटा स्टार्टिंग में इंसर्ट हो गया. ओके, तो टेल मी गाइस, कोई भी एक नाम बताइए जिसके पहले आपको ये सूरज नाम का यूजर ऐड करना है. जस्ट टेल मी एनी नेम. मानसी. मानसी. ओके, तो मान लेते हैं ये मानसी से पहले मुझे सूरज का ये डेटा ऐड करना है. तो ये कौन से लोकेशन पे है मानसी? फोर्थ. तो यहाँ पे हम कोड में जाएंगे एंड जस्ट आई विल से दैट instead of using unshift, just I will say that I just want to use splice. ओके, और जैसे हम स्प्लाइस यहाँ पे ऐड करेंगे, तो या इंस्टेड ऑफ एडिंग दिस वन, आई एम सो सॉरी. तो हमारा इंडेक्स नंबर क्या था? 4, राइट? सो आई विल जस्ट ऐड ए इंडेक्स नंबर. ओके, सो ऐड ए इंडेक्स. तो हमारा जो इंडेक्स है वो है 4. एंड द नेक्स्ट इज, अभी देखिए मुझे डेटा इंसर्ट करना है. डिलीट करना है क्या कुछ? कोई डेटा मुझे डिलीट करना है? No, sir. वेरी गुड. And the second parameter is that 0 because आपको डिलीट नहीं करना है. And the last parameter इसका आपको क्या ऐड करना है? That is the insert function. So let's say कि I just want to add a name like a Sojwan. तो इसको अगर मैंने सेव कर दिया, you will see one thing that कि ये yeah, I think so. Just I missed that index value. So it must be third index. This must be index last one. If I save this, okay, you will see that it's just inserted at the yeah, just hold for a minute, guys.
Yeah. So let's resume. So you will see now the Deepak, sorry, the data. तो हमने क्या insert किया है? Basically, we have inserted Sojwar. So you will see one thing that the Sojwar is inserted exactly the location where we want. Okay. I think so. I just missed that index. It must be 3. ओके तो आप क्या कर सकते हैं एक स्पेसिफिक लोकेशन पे भी डेटा इंसर्ट कर सकते हैं यस यहां तक किसी के पास कोई क्वेश्चन कोई क्वेरी यस यहां तक कोई क्वेश्चन कोई क्वेरी यस एवरीवन इज क्लियर Yes, sir. शैल वी मूव फॉरवर्ड आगे आगे का टॉपिक देखिए Yes, sir. ओके ओके फाइन before we will just take a 2 minutes of break okay just hold for 2 minutes we'll take a 2 minutes of break and then we'll rejoin again
ओके फाइन, सो लेट्स रिज्यूम इट बैक. मेरी आवाज आ रही है सबको? यस देखो Okay. So now let's move ahead and let's move towards the next point. Okay. So let's move towards the next point. So यहाँ पे हमने we have seen कि हम स्प्लाइस का यूज करके डेटा स्पेसिफिक लोकेशन से ऐड कर सकते हैं. इन द सेम वे मान लेते हैं मुझे ये डेटा डिलीट करना है. व्हाट इज माय नेक्स्ट स्टेप टू डिलीट अ डेटा? तो हम सिंपली एरे डॉट पॉप का यूज कर सकते हैं. इससे क्या होता है, एरे के अंदर जो भी डेटा रहेगा वो सिंपली डिलीट हो जाएगा. सो इफ आई जस्ट यूज console.log एरे, you will see वो डिलीट हो गया डेटा. Now at the end I can see the nia is there. So if I just say array dot pop, वो डेटा end से डिलीट हो जाएगा. I can again say array dot pop, you will see it will get deleted. मतलब अगर कोई डेटा मुझे end से डिलीट करना है, so I can use a pop. मान लेते मुझे स्टार्टिंग से डेटा डिलीट करना है, so I can say array dot shift. So you will see जो ओमकार था वो डिलीट हो गया. In the same way, if I just use array dot shift, you will see और एक डेटा डिलीट होता जाएगा. तो जितने जितने मैं array dot shift या फिर pop यूज करूंगा उतने डेटा डिलीट हो जाएंगे. बट मान लेते मुझे क्या करना है, इनमें से कोई एक डेटा डिलीट करना है. लेट्स से ये योगेश जो डेटा है, मुझे ये वाला रिकॉर्ड डिलीट करना है. तो इसकी इंडेक्स पोजीशन क्या है? 4 है, राइट? यस. उसकी इंडेक्स पोजीशन 4 है. तो यहां पे हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं, दैट array dot splice and then I can simply write an index. तो मुझे 4 ये वाला डेटा डिलीट करना है. और डिलीट काउंट कितना करना है? एक ही रिकॉर्ड डिलीट करना है, तो मैं 1 लिखूंगा. यू विल सी दैट कि वो जो स्पेसिफिकली जो योगेश वर्ड था वो रिमूव हो गया. लेकिन एक चीज याद रखिए, जब भी डेटा डिलीट होता है एरे फिर से रिक्रिएट होगा. ओके, सो द एरे विल बी गेट रिक्रिएटेड. नाउ if I want to delete 2 record from Yogesh, I can say 2. तो यहां से दीपक भी डिलीट हो जाएगा. ओके, तो अगर आपने ओरिजिनल एरे देखा, मैं आपको ओरिजिनल भी एरे दिखा देता हूं एक बार, डिलीट होने से पहले और डिलीट होने के बाद. सो यू विल सी, पहले मानसिक के बाद मेरे पास योगेश और दीपक थे, बट अभी दोनों रिकॉर्ड डिलीट हो गए. इफ आई मेक इट 3, तो 4 इंडेक्स के बाद 3 डेटा डिलीट हो गए. सी, योगेश, दीपक और जो नेहा का डेटा था वो डिलीट हो गया. Those users were deleted. And this is the way how you can delete a data. समझ में आ गया तीनों भी? सो जब हम पॉप यूज करते हैं तो वो एंड से डेटा डिलीट करता है,
शिफ्ट यूज करते हैं तो वो स्टार्टिंग से डेटा डिलीट करता है. एंड सिंपली इफ आई यूज स्प्लाइस, ज्ञानेश्वर కొంచెం వెయిటింగ్ లైన్. नहीं यहाँ पे कोई भी वेटिंग में नहीं दिख रहा है मुझे. वेटिंग में, हाँ अभी आ गया. यस, हो गया ज्वाइन. Okay. No, still he is in queue. Okay, no worries. So you can see now we have just deleted the data successfully. So कौन सी मेथड हमने यूज की? पॉप, शिफ्ट और स्प्लाइस. यहां तक क्लियर है सब? एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरी? Till this point? Yes, किसी के पास कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है? सर ओरिजिनल अरे मध्ये चेंजेस नाही होत सर. हाँ, सर ओरिजिनल अरे में चेंजेस नहीं होते ना, वो टेम्पररी दिखाते हैं. नहीं यहाँ पे ओरिजिनल एरे में चेंज कर रहे हैं ना. नो, वी आर मेकिंग द चेंज इन ओरिजिनल एरे. हमने एरे की कोई भी कॉपी नहीं क्रिएट की. यहाँ पे अगर आपने ध्यान से देखा, आवर एरे नेम इज एरे, तो ये एक्चुअली ओरिजिनल एरे में हम चेंज कर रहे हैं, सारा के सारा चेंज. तो जब हम डिलीट करेंगे वो ओरिजिनल एरे इफेक्ट होगा. ओके. ओके, ओके. मान लेते कोई एक रिकॉर्ड आपको चेंज कर रहे हैं. सो नाउ सिंपली जस्ट आई विल कमिट दिस ऑल ऑफ द कंसोल एंड लेट्स गो टू द अपडेट. मान लेते मुझे एक रिकॉर्ड अपडेट करना है. सो इफ आई रिफ्रेश द पेज एंड जस्ट आई विल अनकमिट दिस, यू विल सी दैट कि हमारे पास ये पूरा एरे है. मान लेते यहाँ पे जो नेम था दीपक, मुझे इसे चेंज करके दीपक कुमार करना है. So in that case, what we can do? We can. प्रेमना असेल सांगा काही सजेशन दिता का ते म्हणतो सजेशन प्रेम कडून Harish. Okay. So okay. So now let's say that कि मुझे एक कोई रिकॉर्ड अपडेट करना है. So पहले हमारे पास अगर आपने यहाँ पे आउटपुट देखा, you will see one thing that we were having दीपक. अभी मुझे इसे दीपक को दीपक कुमार चेंज करना है. तो इसका इंडेक्स लोकेशन क्या है? It's a 5, right? So what we can do? Just मैं यहाँ पे लिखूंगा that I just want to update the record. So हम अपडेट कैसे करेंगे? Just I will say that array.splice. Okay. Just I will say index जो था that will be 5. मुझे डिलीट नहीं करना है. ओके. और डेटा ऐड भी नहीं करना है. Just I will add a data that is like say Deepak Kumar. So if I simply save this, और अभी अगर मैंने array को print करने दे, if I just try to print the array, that is console.log array, you will see one thing that ये I'm so sorry, just मुझे ये change करना है. So now you will see one thing that यहाँ पे जो record था that was दीपक, वो add हो गया. लेकिन अभी उसके साथ हमें डेटा डिलीट भी करना था.
मतलब अपडेट करना है, रिप्लेस करना है, तो यहाँ पे मैं 1 लिखूंगा। तो क्या होगा, इंडेक्स नंबर 5 का जो डेटा है वो डिलीट हो जाएगा और उससे नया डेटा ऐड हो जाएगा। सो यू विल सी दैट प्रीवियस डेटा दीपक था, अभी डेटा दीपक कुमार है। तो हमने क्या किया, एक्चुअली एग्जिस्टिंग डेटा को रिप्लेस किया। ओके, एंड फॉर दिस वी हैव द मेथड कॉल्ड एज अ स्प्लाइस। तो हम स्प्लाइस को 3 जगह पे यूज कर सकते हैं। एक तो डेटा ऐड करने के लिए, डेटा डिलीट करने के लिए, और स्पेसिफिक रिकॉर्ड अपडेट करने के लिए। यहां तक सबको क्लियर है? किसी के पास कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी? यस प्लीज। यस, यहां तक कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी? Everyone is clear till this point? Okay, fine. So like Manish don't have any question. Harshal is not having any query. Okay. Fine. So this was like say the specific methods like for each, push, unshift, splice, and we have used pop, shift, splice method. And to update we have used a splice method, right? So now we are going to see the upcoming next method, but in next lecture, that is tomorrow. तो जो कल का लेक्चर रहेगा दैट विल बी एग्जैक्टली एट 5, जिसमें हम एरे की मेथड देखेंगे, एंड देन वी आर गोइंग टू स्टार्ट द वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक दैट इज कॉल्ड एज अ डॉम। तो हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें हम डॉम का टॉपिक जो स्टार्ट करेंगे, एंड वी विल लर्न समथिंग कॉल्ड एज अ जेएस ऑब्जेक्ट। ओके, तो हम 2 टॉपिक कल डिस्कस करने वाले हैं। एक रहेगा जेएस ऑब्जेक्ट इन फर्स्ट 1 आवर, और फिर जो नेक्स्ट 1 आवर है उसमें हम डॉम को डिस्कस करेंगे। ओके, इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके, सो अगर किसी के पास कोई क्वेश्चन है, यू कैन जस्ट आस्क, आई विल जस्ट अलाउ टू अनम्यूट योरसेल्फ। ओके फाइन। ओके, तो यस गाइस, सो लेट्स सी इन द नेक्स्ट लेक्चर। और आपके पास अगर कोई क्वेश्चन है तो कल के सेशन में आप मुझे पूछ सकते हैं। ओके, सो ऑन दिस नोट आई विल स्टॉप द लेक्चर फॉर टुडे, एंड लेट्स सी इन द नेक्स्ट लेक्चर गाइस। थैंक्स अ लॉट एंड हैव अ ग्रेट डे। Yes, just I will share that lecture, okay, in chat itself.